Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Neera, the moderator for this conference call. Welcome to the earnings conference call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco to discuss the financial results for Q2 and H1 FY25. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question-and-answer session. At that time, if you have a question, please press star and 1 on your touch-tone keypad. Please note that this conference is being recorded. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star and 0 on your touch-tone phone. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana. Thank you, and over to you, sir. Thanks, Neera. Good evening, everyone. Thank you for joining us today for Ice Make Refrigeration Limited Q2 financial year 2025 earnings conference call to discuss the financial performance for the quarter ended September 30, 2024. We are delighted to share another quarter of solid performance underpinned by our commitment to innovation, operational excellence, and our robust portfolio comprising of over 50 types of refrigeration equipment. The financial results for the quarter are available on our website and the stock exchanges. However, I would like to remind everyone that during our discussion, we may include forward-looking statements. These are subject to various risks and uncertainties, both known and unknown, that could impact future results, performance, or achievements. We encourage you to view these statements in conjunction with the risk factors outlined in our disclosure. Joining us today to discuss results and address your questions, we have our esteemed management team, Mr. Sangram P. Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President, Strategy, Mr. Ankit Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Mandar Desai, Company Secretary and Compliance Officer. During today's call, we will walk you through our financial performance for the second quarter of FY25, answer your questions, and share insights on our strategic initiatives, market opportunities, and future outlook. With that, I will now hand over the call to our Chairman and Managing Director, Mr. Sangram P. Patel. Sir, over to you. Thank you. Good evening, everyone. I am happy to share with you the financial results of Ice Make Refrigeration Limited in second quarter. Despite a challenging market environment, our performance shows our strong strategic execution and commitment. We have witnessed robust growth in revenue on both a standalone and consolidated basis, driven by increasing demand across our diverse range of refrigeration solutions. This growth shows the success of our market expansion initiative and the solid demand product offerings. Our quarter-on-quarter improvement in EBITDA margin will be our focus and on enhancing operational efficiency and smooth process. While we observe slight year-over-year decline in PAT margin, this was primarily due to increased manpower costs associated with a new project. These costs are strategic investments, and we expect to see positive return once the project starts generating revenue. To address short-term cost pressure, we are implementing strategic cost management measures at optimizing our expense structure. These initiatives are expected to improve profitability in the coming quarter. Our current running order book is 126 crores, and we are confident to achieving a new milestone of our rupees 500 crore revenue target this financial year. Our both new projects like continuous pump panel and commercial freezer will be operational by end of this month, and we are well prepared to capture the upcoming season benefit. We are committed to delivering sustainable growth and enhancing profitability. We are actively expanding
our market presence through continuous innovation and operational excellence. With our diverse product portfolio like cold room storage, ammonia refrigeration, industrial, commercial refrigeration, as well as transport refrigeration, we are well positioned to capture on the increasing demand for advanced cooling and cool chain solutions. Thank you all for your continued support and confidence in IceMac. We look forward to maintaining our growth momentum and achieving greater milestone in the quarter ahead. Thank you for your attention. I now invite our CFO, Mr. Ankit Patel, to provide insight into the company's financial performance, followed by Mr. Nikhil Bhatt, who will share our business growth strategy. Thank you. Thank you, Andy sir, and good evening to everyone. I am pleased to report that our consistent quarter-on-quarter financial growth demonstrates our strategic focus on sustainable expansion and operational efficiency. About standalone financial performance, in Q2 FY25, our revenue from operation increased to 101.38 crore, a growth of 21.88% from rupees 83.17 crore in Q1 FY25 and a notable 34% rise in year-on-year. This performance was driven by heightened demand and effective execution of our strategies. Our EBITDA reached to rupees 8.51 crore, up by 35.08% from previous quarter and 10.81% year-on-year. The EBITDA margin improved to 8.37%, higher than the 7.56% in Q1 FY25, although a slight below the 10.11% recorded in Q2 FY24 due to increase in strategic manpower costs of our new project. Profit after tax stood at 4.89 crore, reflecting a 27.01% raise from Q1 and a 6.53% increase year-on-year, with the PAT margin improving to 4.81%. While this is up from 4.62% in Q1, it is below 6.05% seen in Q2 FY24. On consolidated financial performance, consolidated revenue reached 103.39 crore. It is up by 21.31% from Q1 FY25 and a 34.46% increase year-on-year, reflecting the strong market demand and enhanced product portfolio. EBITDA increased by 39.81% to rupees 8.57 crore, with a margin of 8.28%, up from 7.19% in Q1. It is a bit lower than 10.01%, which was reported in last year. Consolidated PAT was 4.79 crore, a 31.59% increase from 3.64 crore in Q1, and a 6.68% raise year-on-year. The PAT margin improved to 4.63%, up from 4.27% in Q1, though it was below the 5.83% recorded in Q2 FY24. For half-year review, for H1 FY25, standalone revenue raised to 184.55 crore, up 20.63% from H1 FY24, while consolidated revenue increased by 20.88% to 188.61 crore. However, standalone PAT declined by 13.96% to 8.75 crore, and consolidated PAT fell
by 14.42% to 8.43 crores. The company is under expansion phase. We have to incur some costs for a bit time before revenue from new projects start. This is a temporary effect on our margin. Once our revenue from new projects start, our EBITDA margin will be in the normal range of 9.5 to 10.5%. Now, I invite our strategy head, Mr. Nikhil Bhatt, to share business updates. Thank you. Thank you, Ankit. Ladies and gentlemen, Ice Makes robust revenue growth underscores our strong market position and the sustained demand for our diverse refrigeration solutions. Our commitment to innovation, product diversification, and the expansion of our sales channel has been instrumental in driving consistent performance. Looking ahead, the Indian cold chain storage and logistics market is poised for significant growth. As per one of the recent report project, a compound annual growth rate of 5.67%, with the market size expected to expand from $10.30 billion in 2024 to $13.58 billion by 2029. This growth is fueled by increasing demand for perishable goods, the expansion of the food and pharmaceutical industries, and the rising influence of e-commerce platforms. We anticipate strong opportunities in the market as well as investment in cold storage facilities and logistics infrastructure increase. Ice Make is well prepared to capitalize on this growth, leveraging our extensive product portfolio and strategic initiatives to meet the evolving needs of our customers, helping the company achieve its revenue targets. During this current year, we are receiving a sizable order from our good reputed customers and the organization like West Bengal Ice Club. We have received one order from the JV modernization for the 9.63 crores, as well as from the NDDB for the refrigeration plant in Himachal Pradesh valued of 8.28 crores, from Jammu and Kashmir Horticulture Board for the CA cold storage of about 10 crores, and also we are getting a good number from the e-commerce, leading good e-commerce platform with the existing customer as well as the new customer. So far as our new capital investment projects are concerned, as our MD rightly says, the continuous pop tunnel plant is already established and which has been trial run has been done, and the production will start shortly. And the chest freezer or the commercial freezer plant will be operative by end of this month. So far as our associates or the system company Bharat Refrigerations, at present civil construction work is underway. By April 25, it is likely to be completed, and we'll be able to ship that unit by second quarter of FY 26. As our MD rightly says, we are targeting 500 crore and it is achievable. But looking to the numbers of orders we are having as of today, 126 plus crores, and we are hopeful that we will definitely get this target. Thank you for your continued support, and now we look forward to your questions. Thank you very much. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you must press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. First question is from the line of Risha Mehta from GreenEdge Wealth. Please go ahead. Yeah, thank you. So, wanted to check that what would be the revenue contribution of transport refrigeration and ammonia refrigeration for the first half? And since these are low gross margin segments, so the total revenue contribution from these two segments, would we like to cap them at some level? Like in FY24, it was at almost 27% of revenue. Do we have such a capping number in mind? So that's my first question. For the first question about reefer van contribution. In H1, transport refrigeration contribution is around 8%, and ammonia along with
the project has contributed around 23%. So, are we planning to cap the revenues from both these segments at an annual level to some number? Or because, these are low gross margin segments, right? So, how do we actually think about this? In ammonia segment, yes, we feel that the margin is a bit low. Transport refrigeration is also, you said, similar. It is around 16 to 19% gross margin business. I think transport refrigeration vertical should be somewhere in the range of around 10% business. It is not like we are capping, but the nature of business is like it should somewhere in the range of 8 to 10%. And so far as ammonia and other project business is concerned, we feel that in even current financial year also it should be somewhere in the range of maybe 17 to 20% range on a full year basis. But there are some projects also which are having equal type of margin. I think gross margin somewhere around 25-28% also. So not all the projects are having a low margin business. But our focus is to maintain around 9.5 to 10.5% EBITDA going forward with around 25 to 30% growth year on year. So business mix will also be in the similar pattern. It might happen that maybe 2 to 3% business may be somewhere here and there. But our focus is to maintain EBITDA margin in the range of 9.5 to 10.5. And our projection will also be in the similar direction. Yes, ma'am. And 9.5, 10.5 EBITDA margins we are confident of, maintaining or achieving, despite, the variance, the revenue contribution from these two low gross margin segments increasing. Is that understanding right? No, in current projects, there are some projects where we are having gross margin around 25-28% also. Some are having margin in the range of maybe around 12%, 15% also. So it is not fixed that each and every project will bear low margin, but yes, it is right. It is in general said that big projects are having less margin, but there are some projects which is having equally good margin also. So we are also very selective that what if we are selecting any project that our EBITDA margin should be somewhere, in our decided range also. So our focus will be that, and we will make our projection accordingly. And yes, we are confident that in going forward, 9.5 to 10.5% somewhere in the range of 10, we will be able to maintain our EBITDA margin. We are confident on that. Right. And then the industry, the cold chain industry size is almost 2 trillion, while the addressable market there for us is around 6,000 crores as per your presentation. So, by entering new categories or new product lines, etc., how much is it possible in the near term, in the next 2 to 3 years, to say expand this addressable market from 6,000 crores to let's say 8,000-9,000 crores? Is that possible? And if yes, then which are those new products, new categories where we are planning to enter? Actually, what we are referring to 6,000 crores of market, that is, we believe that it is only our existing products. If we add our new products, that is our commercial freezer as well as the continuous freezer, it will be total 15,000 crores in all. So we are definitely increasing our market share, and we are hopeful that we will get the new business from this current market, whatever we are estimated around 50,000 crores. That's 15, right? 15,000 yes. crores. So existing product is about 6,000, and the continuous panel market may be around 4,000 crores, and the commercial freezers market may be 3,000 to 4,000 crores of market, what we believe. So total making is the 15,000 crores of the total market of our existing as well as the new products. Understood. And also, my understanding is that, in chemicals and plastics industry, we have a low presence. So how big is it currently for us in terms of revenues, and what is the potential here over, say, next 2 to 3 years?
See, actually, it is true that chemical and plastic industries we are having less presence, but in the pharmaceutical it is already there. So it's one type of chemical process in the pharma industry. So when we are focusing on chemical market also and plastic, because there in the plastic, some of the other products like the chiller, it is ancillary products or ancillary machinery to the plastic industry. So it may not be required major products in the plastic industry, except some storage of the raw material in particular chemical or etc. Thank you. Risha, I'll request to come back for a follow-up question. Sure, thank you. Thank you very much. Next question is from line of Nikhil Chaudhary, individual investor. And I request to all the participants, kindly ask questions in Hindi if possible. Yeah. Hi Ankit ji, hi Chandrakant bhai, and hi Nikhil ji. Thank you आपने अपॉर्चुनिटी दिया पूछने का. सर ये समझना था अंकित जी, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्विक कॉमर्स का जो प्रॉब्ली हमारा जो हम भी देखते हैं कि जेप्टो, ब्लिंकिट ये सब इतने तेजी से ग्रो हो रहे हैं, इसमें हमारे भी कुछ कस्टमर्स हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको कितना बड़ा लगता है, कितना बड़ा हो सकता है आज के से आपका अगर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा कोई भी प्लेयर का, वो कितना बड़ा हो सकता है इन 2-3 इयर्स, बिकॉज उनको भी बहुत सारे डार्क स्टोर सेटअप करने पड़ेंगे, आपके सर्विसेज लगेंगे, तो ये बात पे आप कुछ बता सकते हैं कितने क्विक कॉमर्स में से कितने प्लेयर्स के साथ हम ऑलरेडी डिस्कशन में हैं और एसोसिएटेड है, अगर ये बता पाए तो. एक्चुअली ई कॉमर्स में तो जो भी अच्छे बड़े प्लेयर्स है सबसे हम लोग काम करते हैं. जो नए लोग आ रहे ग्रोपर्स या जो पुराने लोग है फ्लिपकार्ट, ये सबसे डायलॉग चल रहे अभी, तो उन लोगों के प्रोजेक्शन के हिसाब से हर कंपनी बोल रही है हम इंडिया में 2000 डार्क स्टोर बनाएंगे. डार्क स्टोर 2000 बनाएंगे एग्जिस्टिंग इन लोगों के 300-200 के आसपास के नंबर है. तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल में 600 करोड़ का हमारे लिए बिजनेस मान सकते हैं हम लोग. अच्छा, ओके, सिर्फ इनसे? हाँ, इससे. ओके सर. आज की इनका कंट्रीब्यूशन सर कितना रहेगा? करंट ईयर में शायद ये ई कॉमर्स अभी ही शुरू हुआ, फर्स्ट क्वार्टर में कुछ ज्यादा कोई नहीं था रेवेन्यू में. सेकंड क्वार्टर से अच्छे से बूम है, थर्ड क्वार्टर की है और फोर्थ क्वार्टर का अच्छा नंबर प्रोजेक्शन की. 5-10% जैसा होगा, क्योंकि हमारा लास्ट क्वार्टर में हमारा भी रिटेल सीजन ओपन होता है, तो शायद 5-8% के बीच में रहेगा. ओके सर, थैंक यू सो मच. ये तो बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा अगर 500-600 करोड़ सिर्फ ये स्पेस से ही आ जाए तो. आज ये क्लोज टू लेस देन 50 करोड़ है. हाँ, ठीक है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. I request all the participants kindly restrict to 2 questions per participant. Next question is from the line of Vikas Jain from RM Capital Family Office. Please go ahead. Yes, hi sir. Thank you for the opportunity. सर आप सेगमेंट लेवल पे और अगर हमारा मार्जिन जो कॉम्प्रेशन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, सर वो कॉम्प्रेशन मेनली इज कमिंग फ्रॉम ना ग्रॉस मार्जिन साइड से कॉम्प्रेशन हुआ है, राइट? सो आप कुछ प्रोडक्ट मिक्स पे कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या हर एक सेगमेंट में? हाउ वाज द प्रोडक्ट मिक्स फॉर दिस क्वार्टर? वैसे मैं वर्टिकल वाइज आपको टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन बताता हूँ. फॉर द फर्स्ट हाफ में कोल्ड रूम पे हमने 48% का बिजनेस किया है. इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में अराउंड 4% का कंट्रीब्यूशन है. कॉमर्शियल में 17% है. वैन में ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 8% का कंट्रीब्यूशन है. और एमोनिया और प्रोजेक्ट दोनों को मिला के 23% का कंट्रीब्यूशन. और आपको ब्लेंडेड ग्रॉस मार्जिन लेवल पे बात करें तो आप कंपेयर कर रहे हैं आई थिंक पिछले ईयर में, मतलब FY22 में अगर फर्स्ट हाफ और ये वाला हाफ कंपेयर करेंगे ना तो उसमें सेल्स मिक्स में वेरिएशन था.
क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें हमारा जो की या प्रीमियम वर्टिकल है उनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 80% के आसपास था. आई एम नॉट श्योर बट समवेयर इन द रेंज ऑफ 75 to 80, मे बी अराउंड 78%. तो ये ग्रॉस मार्जिन का जो मेन वेरिएशन आ रहा है ये सेल्स मिक्स की वजह से आ रहा है. अगेन मतलब हमारा फोकस ये रहेगा कि ईयर ऑन ईयर अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो एनुअल बेसिस के ऊपर आपको कोई मेजर वेरिएशन नहीं रहेगा. अगर आप पिछले साल में Q3 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि हमारे ग्रॉस मार्जिन काफी बढ़ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो गई है. तो इट डिपेंड्स के किस टाइप का हमारा सेल्स मिक्स रहता है, जिसको मॉनिटर करेंगे एनुअल बेसिस पे हम उसको थोड़ा सा और कंट्रोलेबल कर पाएंगे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनकी साइट रेडी नहीं होती है, कई बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के डिस्पैचेस ज्यादा हो जाते हैं. तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि उस साइट या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के डिस्पैचेस की वजह से क्वार्टर वाला जो मार्जिन है वो कॉम्प्रेस हो जाता है या कई बार ज्यादा भी हो जाता है. तो एनुअल बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो हमारे मार्जिन प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है. समझ गया. सो बेसिकली लाइक एग्जीक्यूशन पे है, प्रोबेबली एक आध क्वार्टर में वो एग्जीक्यूशन में कुछ लो मार्जिन सेगमेंट का ज्यादा रहता है, इसलिए आपके मार्जिन बट एनुअलाइज वो हमारी EBITDA की रेंज भी ले लो या कई बार ग्रॉस मार्जिन की रेंज भी ले लो, वो तकरीबन आप ज्यादा वो कंपेरेबल रहेगी. जी सर, समझ गए. तो सेकंड थिंग, हमारा केपेक्स का फिगर मीन्स जैसा आपने इनिशियल कमेंट्स में बताया कि जो दोनों नए प्रोजेक्ट्स है दे आर ऑलमोस्ट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन. तो H1 में केपेक्स कितना हो चुका है और H2 के लिए क्या गाइडेंस है? जैसे हमारा जो फर्स्ट फेज है जिसमें हम बोलते हैं कि 100 करोड़ का कैपेक्स होगा, जिसमें कंटिन्यूअस पैनल और कॉमर्शियल फ्रीजर दोनों को मिलाए, तो वो वाला कैपेक्स हमारा एज ऑफ नाउ देखे तो जस्ट एट द एंड है. मतलब वो तकरीबन हम सारा कैपेक्स कर चुके हैं. हार्डली जो इंस्टॉलेशन वाला अमाउंट होता है या थोड़ा सा कमिश्निंग के बाद देना होता है वो वाला अमाउंट ही बुक से आना बाकी है. तो कंटिन्यूअस पैनल में मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट हमने 64 करोड़ का एक्सपेंस हमने किया हुआ है, जिसमें लैंड 14 करोड़ है, बिल्डिंग और मशीनरी दोनों में 23 करोड़ है, इलेक्ट्रिफिकेशन और अदर में हमारा तकरीबन 3.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है. तो और कॉमर्शियल में हम देखें तो 15 करोड़ की मशीनरी वो सारी आ चुकी है, अभी उसका कमिश्निंग चल रहा है. कंटिन्यूस पैनल का तो प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, इस मंथ में वी आर एक्सपेक्टिंग के बिलिंग हो जाएगा. और कॉमर्शियल फ्रीजर का कमिश्निंग चल रहा है, इस महीने के एंड तक उसमें भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा अभी. तो ये दोनों प्रोडक्ट जो नहीं है उसमें दिसंबर से लेके 4 महीने हमारे पास रहेंगे. तकरीबन सीजन का जो हम टाइम बोलते हैं कि बिफोर समर लोग जो बड़े कैपेक्स करते हैं या प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो वो बेनिफिट में ये दोनों प्रोजेक्ट हमें टॉप लाइन में अच्छे कंट्रीब्यूट करेंगे. हमने चेन्नई वाला जो कैपेक्स में जैसे वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजी निखिल जी ने बताया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द अप्रैल उसका कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा. उसमें भी हमारा तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास का कैपेक्स हो चुका है. और आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी विल बी शिफ्टिंग. राइट. ओके. तो जी कंटिन्यूस पैनल है और ये कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन है, इसका ऑर्डर बुक विजिबिलिटी कितने महीने का रहता है? और सिंस हम ये इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर बुक अभी एज ऑन डेट आपको क्या लग रहा है? व्हाट विल बी रेवेन्यूज, हम रेवेन्यू कितना क्लॉक कर पाएंगे इन H2? H2 में हमें दोनों ही नई प्रोडक्ट को लेके 45 to 60 करोड़ का उम्मीद है हम इतना कर पाएंगे. ऑर्डर बुक की जो बात है, हमारे पास कंटिन्यूस ऑफ पैनल का प्रोडक्शन ट्रायल टेस्टिंग हो चुका है, उसका 5-6 करोड़ का ऑर्डर ऑन है. क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में अगर आपके पास प्रोडक्शन नहीं है तो प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से लोग ऑर्डर एडवांस करते नहीं. तो अब ऑन हैंड ऑर्डर होना शुरू होगा, मटेरियलाइज होगा लोगों से जो
डायलॉग चल रहे जो इंक्वायरी पे वो होंगे। और कॉमर्शियल फ्रीजर में भी ऐसा ही है, अभी प्रोडक्शन है इसलिए जो लोग है एक्चुअली वो जनरल ट्रेड मार्केट है, लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से होंगे, तो अगले 15 डेज के बाद ऑर्डर बुकिंग शुरू होगा। लेकिन कई लोगों से ऐसा पॉजिटिव डायलॉग चलता है कि प्रोडक्शन होते ही वो लोग अपना ऑर्डर कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन, ये जो दोनों नए सेगमेंट है कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन और कंटिन्यूस पैनल, इनके मार्जिन प्रोफाइल कैसे लग रहे हैं? इट इज सिमिलर टू अपने दूसरे बिजनेसेस या फिर इनिशियली इट इज बी लोअर एंड देन इट माइट इम्पैक्ट? जैसे अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करेंगे तो ये पूरा ऑटोमेशन वाला प्लांट है, तो इसमें ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा कम है। कंटिन्यूस पैनल में समझो ना अराउंड 15-16% का ग्रॉस मार्जिन रहता है, और कॉमर्शियल फ्रीजर में 18 से लेके 22% का, मतलब डिपेंड ऑन वॉल्यूम किसके साथ कर रहे हैं, तो 18 से 22 का ग्रॉस मार्जिन रहेगा। लेकिन लेबर की कॉस्ट काफी कम है, तो इबिटा मार्जिन के ऊपर तो ये हमारे जो एग्जिस्टिंग इबिटा है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसमें कोई कॉम्प्रेशन नहीं आएगा। समझ गया। और हमने जो Sure. I request all the participants kindly restrict to 2 questions per participant and join the queue for a follow-up question. Next question is from the line of Zaki Nasir, individual investor. Please go ahead. चंद्रकांत भाई नमस्कार, अंकित भाई और the entire team. Sir, congratulations on the अपना जो कंटिन्यूस पैनल का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है सर। सो चंद्रकांत भाई, नेक्स्ट ईयर आप इससे कंटिन्यूस पैनल से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? और ऑल ऐसा अंडरस्टैंडेबली ये साल एबिटा मार्जिन थोड़े सफरेट रहेंगे बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग इश्यूज। Next year, do you think the combined EBITDA margins will remain around 10%, sir, continuous panel and our existing business? एग्जैक्टली जी, मतलब अभी EBITDA मार्जिन की हम बात करें तो हमें लगता है कि आई थिंक करंट फाइनेंशियल ईयर में ये वाला जो हम 500 करोड़ का टारगेट दे रहे हैं कि ये अचीव कर लेंगे, तो EBITDA मार्जिन 9.5 से 10 वाली रेंज में आ जाएंगे। हमें नहीं लगता है कि, क्योंकि जो भी बड़े एक्सपेंडिचर या मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो भी फिक्स टाइप का एक्सपेंडिचर है, वो मेजोरिटी हमने इनकर किए हुए है। अभी गोइंग फॉरवर्ड ऐसा है कि अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही ये सारे मार्जिन और ये आ रहे हैं। नए वर्टिकल का तो कोई कंट्रीब्यूशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो जैसे ही नए वर्टिकल कंट्रीब्यूशन करेंगे, अभी समझो कि 50-60 करोड़ का उनका टॉप लाइन हम इस साल में प्लान कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग से भी हमारा बिजनेस ग्रो होगा, नॉर्मल 15% का ग्रोथ ले लो, और हमें लगता है 500 करोड़ तो इस साल में हम उसको क्लॉक कर देंगे, तो इबिटा मार्जिन हमारे इसी साल में नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे, 9.5 से 10 वाले। मतलब हमें नहीं लगता कि उसमें और कोई ज्यादा दूसरे एक्सपेंस या दूसरे बर्डन आएंगे, तो ये मार्जिन तो हम इसी साल मेंटेन कर लेंगे। जी सर। और सर ये नेक्स्ट ईयर कंबाइंड कितना टॉप लाइन रह सकता है कंटिन्यूस पैनल का? 60 to 70 crores you will clock on just the continuous panel, sir? कंटिन्यूस पैनल का हमें लगता है नेक्स्ट ईयर में समवेयर अराउंड 60 से 80 करोड़ के आसपास का शायद बिजनेस हो सकता है। वी आर स्टिल ऑन अ कंजर्वेटिव साइड से शायद ये वाले नंबर्स तो हम अचीव कर ही लेंगे, और साथ साथ में हमारे कमर्शियल फ्रीजर का भी वी आर एक्सपेक्टिंग इन द रेंज ऑफ अराउंड 30 या 40-45 करोड़ का नंबर शायद ये भी ले आएगा। ये क्या पूरी ऑटोमेशन वाली लाइन है, तो हमारा भी फोकस यही रहेगा कि ये वाली लाइन हो सके मैक्सिमम पेज के ऊपर ये रन करे, मिनिमम टाइम के अंदर हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारे मार्जिन काफी अच्छे रहेंगे। नॉर्मल बिजनेस तो एक से एक ग्रो होगा। जी सर। So next year with the entire thing, I think you have planned close to 625 to 650 crore kind of top line with the new project coming in. Yeah, we are expecting somewhere in the range of around 650. जी सर। और सर एक
छोटा लास्ट क्वेश्चन सर, ये कमर्शियल फ्रीजर का जो सेगमेंट है जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे थोड़ा हटके स्लाइटली B2C के तरफ है सर, सो हाउ आप इसका ब्रांडिंग कैसा करेंगे सर? एक्चुअली हमारा ब्रांड तो स्ट्रांग है जो आइसक्रीम और फ्रोजन मार्केट में बेवरेजेस में, और ये हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क से ही ये प्रोडक्ट करेंगे, तो ये रिटेल में करना है। लेकिन जो की अकाउंट है, कई सारे आइसक्रीम कंपनी है अपनी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए काम करते, तो इंडिया के हर एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर, फ्रोजन मैन्युफैक्चरर से हम अभी हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में काम करते हैं। तो ये एस्टेब्लिश नेटवर्क है ही हमारे पास, ये प्रोडक्ट ही हमें रखना है उस प्लेटफॉर्म पर। जी सर, थैंक यू सर। और एक सर लास्ट नेक्स्ट ईयर डेट लेवल्स क्या रहेंगे सर अपना ब्रॉडली विद दी एक्सपेंशन और जो फंड रिक्वायरमेंट रहेंगे सर? हमने ये जो अभी लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हो आप या इंक्लूडिंग टोटल डेट? लॉन्ग टर्म डेट एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ऑल्सो, ओके। अभी लॉन्ग टर्म डेट तो ये जो हमने लिया हुआ है, आई थिंक इससे और ज्यादा आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हो सकता है शायद छोटा मोटा टोल टेकिंग की वजह से कोई एक आधा स्मॉल लोन आ सकता है, बट स्टिल वो शायद अभी जो लेवल है समझो ना 65 करोड़ से ज्यादा का कभी ये लॉन्ग टर्म डेट जाएगा नहीं नेक्स्ट ईयर में। और वर्किंग कैपिटल में अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लिमिट थी 40 करोड़ की, उसको हम एनहांस कर रहे हैं। जो 40 करोड़ की फंड बेस्ड लिमिट है उसमें और 25 करोड़, मतलब टोटल फंड बेस्ड लिमिट हम 65 करोड़ की कर रहे हैं। अभी एवरेज यूटिलाइजेशन भी काफी कम है, लेकिन एग्रेसिव मोड पे हम जाएंगे। ये जो नए वर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करनी है, हो सकता है 5 या 6 करोड़ का तो रॉ मटेरियल हमें एग्जिस्टिंग ग्रोथ कैपेबिलिटी के साथ तो हमें वहां पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। और जो दूसरा मॉडल है ये अपना कमर्शियल फ्रीजर वाला, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे हम जाएंगे, थोड़ा सा स्टॉकिंग करेंगे। अगर सीजन टाइम पे हम देखें तो उसमें काफी शॉर्ट सप्लाई होती है, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस ना करनी हो तो हमें मे बी फॉर 2 to 3 मंथ हमें थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल उसमें यूज करना रहता है, तो वो अपॉर्चुनिटी हम लॉस ना करें जस्ट 2 to 3 मंथ की वजह से। तो उसके लिए हमने बफर साइड को लेके टोटल फंड बेस्ड लिमिट हमने 65 करोड़ की प्लान की है, पर उसमें भी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम नहीं होगा। दैट यूटिलाइजेशन भी समवेयर इन द रेंज ऑफ अराउंड 50% एवरेज एनुअली, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अपना ज्योग्राफिकल स्प्रेड अभी कैसा हो रहा है सर टुवर्ड्स ईस्टर्न मार्केट आप लोग ने चालू किया था, तो अगर आप ब्रॉडली करंट ईयर जो 500 करोड़ होगा उसका एक ब्रॉड ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा रहेगा सर? बस जोन वाइज हम देखें तो हमारा पैन इंडिया प्रेजेंस स्ट्रांग हुआ है। वेस्ट में हम 22-23 में देखें तो 64% था और 23-24 में वो रिड्यूस होकर 55 हुआ है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बढ़ा है। पर जियोग्राफिकली बाकी जोन और रीजन हमारे स्ट्रांग हुए हैं। ईस्ट में हमारा 18% का कंट्रीब्यूशन है, नॉर्थ और साउथ दोनों में 14% का शेयर है, और वेस्ट में हमारा 47% का कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब बाकी सारे रीजन स्ट्रांग होने की वजह से हमारा अभी वेस्ट का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज फॉर्म में कम दिख रहा है। एब्सोल्यूट अमाउंट फॉर्म में तो वो वैसे भी बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर, लेकिन और रीजन में हम स्ट्रांग हुए हैं, उसकी वजह से जियोग्राफिकल स्प्रेड हमारा थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। थैंक यू सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर द ईयर एंड योर न्यू प्लान सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much. Participants kindly restrict to 2 questions per participant. Next question is from the line of Vijay Shah, individual investor. Please go ahead. Thank you sir for giving me the opportunity. मेरा सवाल यही था कि आपने जो इस बार प्लेज किया है, फर्स्ट टाइम किया है 4.15%, तो उसको आप मतलब किस वो यूज करेंगे वो फंड? हेलो, हाँ जी, एक मिनट। हेलो,
ये मेरा पर्सनल होम लोन के लिए मुझे था, मुझे घर के लिए मेरा लोन था, इसलिए मैंने प्लेस किया हुआ है। तो शायद 2-3 साल के टाइम के लिए किया हुआ है। ओके, मतलब 3 years का टेनर है एंड इट इज फॉर पर्सनल, नॉट फॉर केपेक्स और एनीथिंग। नहीं, कोई कैपेक्स नहीं है, मेरे पर्सनल यूज के लिए, और वो भी घर बनाने के लिए स्पेसिफिक यही पर्पज है, और कोई पर्पज। ओके सर, ओके, थैंक यू। Thank you. Next question is from line of Tesh Patel from Nivesha Investment Advisory. Please go ahead. Hi, good afternoon, Chandrakant ji, Ankit ji and Nikhil ji. Thank you so much for the opportunity. वैसे मेरे काफी सवाल की जवाब काफी विस्तार में दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। मेरे थोड़े और सवाल है ऑन आवर न्यू केपेक्स। सो जो हमारा जो स्पेशली कमर्शियल लाइन, सो व्हाट आई वाज लुकिंग एट कि अगर मैं डेटा देखूंगा 3-4 साल पहले, और आपने इसमें बात से पहले भी एक टच किया था कि इम्पोर्ट्स काफी कम हो गए, ऑलमोस्ट पहले अगर लेट्स से 4 लाख यूनिट होता था इम्पोर्ट, तो अब प्रोबेबली लेट्स से 18,000 राइट इन दिस ईयर। सो आपको ये OEM अपॉर्चुनिटी कितनी एक्साइटिंग लगती है? आई मीन ऑल्दो लेट्स से द मार्जिन्स वुड बी लो, बट मोर एंड मोर जो भी एक्जिस्टिंग प्लेयर्स है, लेट्स से वोल्टास, ब्लू स्टार, वेस्टर्न, वो ज्यादा से ज्यादा लोकल प्लेयर्स को और काम दे रहे हैं, मे बी फॉर फ्यू कंपोनेंट और पूरा सेटअप बनाने के लिए। तब मुझे OEM अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स गेटिंग रिड्यूस्ड, हाउ बिग do you see this getting, और आपको इधर से कितने ऑर्डर आर यू एक्सपेक्टिंग, और how much you want to keep a share between let's say the branded products and the OEM? एक्चुअली OEM हम लोग इतना फोकस नहीं है, हमारी अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 1.25 लाख पर एनम है, तो हमें लगता है कि 30% जो हम लोग OEM के लिए काम कर सकते हैं। बैलेंस हमारे पास एक डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हमारे कई सारे पुराने आइसक्रीम कस्टमर है जो अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए फ्रीजर बाई करके अपने रिटेल आउटलेट पे देते हैं। तो हमारा ज्यादा फोकस है रिटेल और की अकाउंट, जो हम लोग आइसक्रीम और फ्रोजन प्रोडक्ट उनके रिटेल आउटलेट के लिए। OEM में अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा सीजनल डिमांड वाली प्रोडक्ट भी है। तो जब आपका मार्केट डिमांड होता है, जब आपको एक ठीक से प्रॉफिट से काम करने का टाइम है, वही टाइम पे OEM भी अपना प्रेशर बनाते कि सप्लाई मुझे दो। तो हम OEM फर्स्ट फेज खत्म करने के बाद में ऐसा लगेगा कि हमें नेक्स्ट कैपेसिटी एक्सपांशन के टाइम पे हम OEM को कंसीडर करें, उनके लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी रिजर्व रखें कि हम OEM को भी अच्छे से कैटर करें। इंडिया में अभी कई काम करने वाले मल्टीनेशनल कंपनी है, जापानीज कंपनी भी है, उसमें वो लोग भी इंडिया में व्हाइट लेबलिंग ही कराती है। तो ऐसे लोगों से भी हमारा बात चल रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट नहीं होता है ना आपके हाथ में, तो क्योंकि अपकमिंग सीजन के लिए कोई ऐसा सॉलिड डिसीजन नहीं हो पाता। Got it. मेरा दूसरा, आपने सर कैपेसिटी क्या बोली? 1.2 लाख पर एनम, राइट? हाँ, 1.25 लाख पर एनम। ये चेस्ट फ्रीजर्स और वीसी कूलर्स दोनों है क्या? हाँ, वो दोनों ही मिला थे। ओके। तो इसमें कोई सेपरेट कैपेसिटी है या दोनों से फंजिबल है? नहीं, इसमें वीसी कूलर हम लोग 8,000 पर एनम करेंगे, बैलेंस जो भी है वो चेस्ट फ्रीजर में जाएगा। ओके। और सर प्रोबेबली इंडिया का मार्केट लेट्स से इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं खाली चेस्ट फ्रीजर की बात करूँ, वो करीबन 7-8 लाख होगा, राइट? अगले साल का 10 लाख जितना था चेस्ट फ्रीजर का। चेस्ट फ्रीजर में वो 2-3 प्रोडक्ट भी है, कॉम्बी फ्रीजर आ गया, ग्लास टॉप है, चेस्ट फ्रीजर, ये सब कुछ मिला के होता है। गॉट इट। और सर इसमें क्या मतलब, आई गॉट इट कि ऐसा अगर हम एंड यूजर जैसे एंड ऑफ द ग्रोसरी मार्केट जो रिटेलर्स है वो इतनी तरह से ग्रो नहीं हो रहे, फॉर एग्जाम्पल उसका चाहे लेके क्विक कॉमर्स ने ले लिया है, तो ये इंडस्ट्री जो जहाँ पे अब हमारा चेस्ट फ्रीजर यूज हो रहा है, वो कितने साल एक्सपेक्ट करो कि ग्रो होगी? मतलब अगर आज 10 लाख है तो उसको लेके डबल होने में कितने साल, 5-6 साल लगेगा? आप कितने ग्रोथ रेट से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और हम कैसे मार्केट एक्वायर करेंगे? जैसे ऑलरेडी जैसे हमारा आइसमेक का ब्रांड ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है, तो हम वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग मार्केट शेयर, और यह नई इंडस्ट्री जो रही है, नए रिटेलर्स आ रहे हैं, उधर देने की सोच रहे हैं, तो इस पे थोड़ा एलोबरेट कर सकते हो?
एक्चुअली ये जो कमर्शियल प्रोडक्ट है वो 15% CAGR से ग्रोथ होता है और इंडिया में हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट है इसके अलावा हम लोग वाटर कूलर में काम करना शुरू करेंगे, चेस्ट फ्रीजर, वेजिकुलर और वाटर कूलर। तो टोटल इंडिया का पिछले साल का 18 लाख यूनिट का मार्केट साइज था। अब 18 लाख में हम लोग हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 1.25 बोलते हैं, एक्चुअल हम लोग 60-70% से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे सीजनल ऑफ सीजन इफेक्ट को लेके। तो हम टोटल मार्केट में नंबर्स को देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट 5-6% ही है। तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई बड़ा मार्केट शेयर की जरूरत है जिससे हमें कोई एस्टैब्लिश प्लेयर का काम के सामने कॉम्पीट करना पड़े। गॉट इट। और सर जैसे आपने इसमें भी पहले दोहराया था, जैसे सर हमारा सारी प्रोडक्ट्स में वो पफ पैनल लगेगा राइट, बट जो कंटिन्यूस पैनल जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है वो नहीं लगेगा राइट, बिकॉज वो साइज बहुत बड़ी होती है। ये मेरी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है? कंटिन्यूस पफ पैनल हमने पहले भी बोला था कि अभी भी हम लोग पिछले 2-3 साल से 20 CR का हम लोग आउटसोर्सिंग करके हमारे एमोनिया और बड़े कोल्ड रूम के प्रोजेक्ट करते ही थे। तो कोल्ड रूम वाली प्रोजेक्ट है, एमोनिया प्रोडक्ट है, उसमें हमारा अपना कंटिन्यूस पफ पैनल भी एक कॉम्पिटिटिव एज देने में सपोर्ट करेगा। ओके, गॉट इट। और सर और एक मेरा लास्ट सवाल है सर, जैसे हम एज अ होल अगर इंडस्ट्री की बात करें, हम $2 ट्रिलियन हम बोलते हैं, और अगर मैं डेटा को देखूं तो सर ऑलमोस्ट 2016 में 17 में इंडिया को जितने लेटे कोल्ड रूम चाहिए थे, अब थोड़ा वो गैप थोड़ा ही लेटे कैप्चर हुआ है। लेकिन अभी हम 2023-24 में तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है। ऑल्दो हम बोलते हैं इंडस्ट्री 30% से ग्रो होगी, एंड लकीली फॉर आवर कंपनी वी हैव ग्रोन लाइक 30% इन द पास्ट बिकॉज ऑफ आवर गुडविल, हम एक्सपांड कर रहे हैं। बट वो क्या रीजन हो सकता है कि लेट्स ऑन ग्राउंड भी फार्मर्स बाय कर रहे हैं कोल्ड रूम, रिटेलर्स बाय कर रहे हैं कोल्ड रूम, वो कॉन्स्टेंट क्या हो रहा है कि ऑल्दो इतना बड़ा गैप है कि पैक हाउसेज ऑलमोस्ट 90% गैप है उधर, बट वो ग्रो कभी वो फुलफिल नहीं हो रहा डिस्पाइट गवर्नमेंट पॉलिसीज और वो। So ये ग्रोथ कब आएगा और हाउ लॉन्ग कुड आवर कंपनी लेट्स से ग्रो लेट्स से 30% अभी जो हम ग्रो रेट इज हाउ मच सस्टेनेबल कितना हो सकता है कब तक, बिकॉज इंडस्ट्री साइज इज रियली बिग, बट वो ऐसे 3-4 साल से भी बिकॉज ऑफ एडॉप्शन प्रॉब्लम वो इतनी ग्रो नहीं हुई है। तो उसमें आपका अभी कोई थॉट्स इफ यू वांट टू पुट इन? एक्चुअली नंबर्स के हिसाब से आप सही है, मगर जो अभी मार्केट ट्रेंड चल रहा है, अभी ये ई कॉमर्स देख रहे हैं, तो वो एक नया कंसेप्ट है कि हमारे इंडिया में आज से 5 साल पहले लेकर बात करें तो वो मार्केट था ही नहीं। तो अभी वो एरिया में मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है, और बाकी जो एक अवेयरनेस आ रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और लोगों का जो अवेयरनेस है तो डेफिनेटली बिजनेस तो बढ़ता ही है, मगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एट मे बी नॉट व्हाट यू आर टॉकिंग इज करेक्ट, ऐसा लगता नहीं है, मगर डेफिनेटली मार्केट तो बढ़ ही रहा है। कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स भी शायद कुछ नए ऐड होते रहेंगे, तो वो हिसाब से इतना डिमांड तो रहेगा। अच्छा, इस डिमांड से अगर आप ऐसे सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की काफी जरूरत है। मतलब जैसे ही अगर पैन इंडिया में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फॉर एग्जांपल हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी आएगी या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क प्रॉपर होगा। आज भी ऐसा है कि कई गांवों में बिजली का इश्यू है, तो जहाँ पे बिजली का इश्यू होगा वहाँ पे हमारा छोटा सा कॉमर्शियल फ्रीजर है, डीप फ्रीजर है, उसका मतलब डिमांड ही नहीं आएगा। मतलब उसमें जो आइसक्रीम की कॉस्ट है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि भाई बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये डिमांड नहीं आएगी। द थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा उतना फास्ट ये इंडस्ट्री का और हमारा रेफ्रिजरेशन का पूरा ग्रोथ रहेगा। अभी देखिए तो ये जो गवर्नमेंट है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में जो स्पेंडिंग कर रही है, और जिस हिसाब से इवन क्विक कॉमर्स वाले भी ये लोग बैठ कर रहे हैं, और हमारी जो इंडस्ट्री जो कैटर करती है वो नेसेसिटी है, जैसे डेयरी हो गया, आइसक्रीम हो गया, और फार्मास्यूटिकल हो गया, और लोगों का जो फूड हैबिट जो चेंज होता है क्विक कॉमर्स में देखे, QSR में देखे, तो ये जो इंडस्ट्री है वो इटसेल्फ काफी ग्रो हो रही है। हमारी जो प्रोडक्ट एंड में यूज करते हैं वो बिजनेस ग्रो होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, तो डेफिनेटली कंपनी तो ग्रो करेगी ही करेगी।
और हमारी ऑर्डर बुकिंग या लीड्स में भी हमें ये अभी कन्वर्जन नजर आ रहा है कि भी हमें इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा रीजन है कि कंपनी क्यों ग्रो ना कर पाए। नहीं सर, कंपनी को ऑब्वियसली सर आई वाज जस्ट, मेरे को थोड़ा इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव चाहिए था। कंपनी लेवल आई गॉट इट, आप 30% से ग्रो किया और वंडरफुल लोग करते रहोगे, मेरे को थोड़ा इंडस्ट्री से पर्सपेक्टिव चाहिए था। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। I request all the participants, please restrict to 2 questions per participant. Next question is from the line of Vignesh Iyer from Sequent Investments. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जो अभी टोटल केपेक्स करने वाले हैं, 2 चीज इसमें जानना चाहता हूँ। केपेक्स को छोड़कर हम सेट के एसेट बेस पे कितना पीक रेवेन्यू कर सकते हैं, और जब केपेक्स हो जाएगा आप उसका मुझे प्लीज टाइमलाइन बताइए, और उसमें हम क्या पीक रेवेन्यू कर सकते हैं केपेक्स होने के बाद। मतलब ये हमारा 100 करोड़ का जो फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स है, उसके बाद में हम अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी समवेयर अराउंड 750 से 800 करोड़ की प्रोजेक्ट करते हैं। ये वाला फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स हो जाए एग्जिस्टिंग एज वेल एज नए कैपेक्स के बाद, ये हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी हुई 800 करोड़, 750 से 800 करोड़ की। 750 से 800 करोड़ का पीक रेवेन्यू हम कर सकते हैं। हाँ सही। हाँ, और हमारा ये जो फर्स्ट फेज है कभी किक इन होगा? मतलब जो उसमें हम 90 करोड़ 88-90 करोड़ के आसपास का तो कैपेक्स हमारा इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, और जो चेन्नई वाला कैपेक्स है दैट वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द मंथ ऑफ मे नेक्स्ट ईयर। मे में वो फेज भी खत्म हो जाएगा और जून में हम वो ऑफिस शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो हम ये जो केपेक्स जो 6 महीना में खत्म होगा उससे हम रीजनेबल कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं Q4 में, राइट? जो कि हमारा काफी अच्छा क्वार्टर होता है नॉर्मली। और डेफिनेटली Q4 में उसका रेवेन्यू शेयरिंग होगा। जैसे तो इस दिसंबर में तो शायद दिसंबर से ही ज्यादा बिलिंग हो सकता है, तो पूरे 4 महीने में ये बिलिंग होगा ये दोनों प्रोडक्ट का। ओके सर, समझ गया सर, यही समझना था मुझे। शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Next follow-up question is from the line of Vikas Jain from RM Capital. Please go ahead. यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर फॉलोअप के लिए। सर मैं थोड़ा ओवर लॉन्गर टर्म व्यू से मैं समझना चाह रहा था सर हमारा मार्जिन प्रोफाइल है 9.5 to 10% जो आप सस्टेनेबल रेंज बताते हैं, राइट सर? इन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग क्या क्या लीवर्स रहेंगे हमारा मार्जिन एक्सपांशन के लिए यहाँ से? जैसे जो आपने पीक रेवेन्यू बताया अभी 750 to 800 करोड़ एंड इवन बियॉन्ड दैट, इज देयर अ स्कोप की 9.5 से 10.5 का मार्जिन फ्यूचर में 12-13% भी जा सकता है, और यू वुड वांट टू मेंटेन दिस मार्जिन रेट टू गेट दैट रेवेन्यू केगर्स? अभी हमारा कंपनी का ये फोकस है कि हमारी टॉप लाइन देखिए तो 500 करोड़ की टॉप लाइन अभी इतनी बड़ी नहीं है। एक बार 2000-3000 या ऐसी साइजेबल टॉप लाइन जब तक नहीं आती तब तक हमारा फोकस ये है कि हम मार्जिन को फोकस ना करें। हो सकता है शायद जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखे तो आई थिंक समवेयर इन द रेंज ऑफ नियर अबाउट 11% का मार्जिन था। उस टाइम पे भी हमें काफी सारे क्वेश्चन आए थे कि आप मार्जिन के ऊपर फोकस करेंगे, पर हमने उस टाइम पे भी बताया था कि मार्जिन अभी हमारा फोकस नहीं है, मार्जिन बढ़ाना हमारा फोकस नहीं है, मार्जिन को मेंटेन करेंगे, दैट इज इन अवर फोकस। बट सबसे पहले हमें अपनी टॉप लाइन बढ़ानी है, पैन इंडिया में हमारी मार्केट रीच बढ़ानी है, और एक साइजेबल टॉप लाइन है 2000-5000 ऐसी कोई टॉप लाइन अगर आ जाए उस टाइम पे तो तब हम बॉटम लाइन को फोकस करेंगे। ये हमें लगता है थोड़ा सा हमारी साइड की कंपनी के लिए बेटर रहेगा। ओके। और सर अगर प्राइसिंग की बात करें तो मार्केट में जो हमारा कंपटीशन है, जो हमारे जैसे ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेट्स से इन व्हाटएवर इन ऑल द सेगमेंट दैट वी ऑपरेट, तो हम क्या उनके प्रोडक्ट प्राइसिंग में वी विल बी एट अ डिस्काउंट टू बिगर प्लेयर्स, और अगर डिस्काउंट में है तो अराउंड हाउ मच %? एक्चुअली ये प्रोडक्ट ओनली ब्रांड पे नहीं बिकता है, आफ्टर सेल सर्विस आप प्रोडक्ट कस्टमर को कितना अच्छे से उसकी रिक्वायरमेंट को सर्व करते
आप बोल सकते हैं कि माइनर कस्टमाइज। तो हम प्रीमियम पे भी कभी कभी प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन इक्वल प्राइस पे बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इंडिया के प्राइस सेगमेंट को देखें तो हम इक्वली काम करते हैं, हमें कहीं डिस्काउंट देके काम कर ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, समझ गया सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। थैंक यू। Next question is from the line of Gurjeet Singh, individual investor. Please go ahead. सर नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ नमस्ते, आ रही है। थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है सर। 2-3 कॉल पहले आपने डेटा सेंटर्स के बारे में कुछ बताया था, जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आगे कुछ प्रोग्रेस है क्या सर? एक्चुअली वो आप 2-3 कॉल के पहले हमने बोला भी था, हम चेक करते, लेकिन तो प्योरली एयर कंडीशन बिजनेस है और हम रेफ्रिजरेशन के लोग हैं, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जो इंस्टॉलेशन स्किल में फिट नहीं बैठता, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी से हम कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you. A reminder to all the participants, you may press star and 1 to ask a question. Next question is from the line of Mausam Shah from Wealth Guardian Services. Please go ahead. हेलो हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो हाँ नमस्ते, यू आर ऑडिबल। नमस्ते। सो मुझे ये पूछना था कि हमारे रिसीवेबल डेज इस क्वार्टर में थोड़े बढ़ गए हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा रिसीवेबल डेज सस्टेनेबल क्या रहेगा? एक्चुअली सितंबर में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करूँ तो स्पेसिफिक सितंबर मंथ में हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट के टोटल रिसीवेबल में बोलूँ समवेयर अराउंड 23 या 24 करोड़ के आसपास थे। वेरी नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट वीक में हमें समवेयर 7 करोड़ का नेक्स्ट वीक में पेमेंट आया था, बाकी का 7 करोड़ के आसपास का उसके 1-2 वीक के बाद आया था। तो मतलब एट द हाफ ईयर या क्वार्टर स्टेज पे अगर हम बोले ना, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे रिसीवेबल्स में या कहीं नंबर्स में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लगे, लेकिन आज की एज ऑफ नाउ वाली आप सिचुएशन को मैप करें तो रिसीवेबल डेज और वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन इज वेल विद इन द रेंज। तो वर्किंग कैपिटल हेल्दी है, 6 टाइम का हमारा वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर एनुअली वी कैन एक्सपेक्ट। कभी ऐसा हो जाता है कि प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स है, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं डायरेक्टर का कोई चेंज है, कोई नया एमडी आ रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि सिग्नेटरी या वो चेंज होने में 15-20 दिन या 1-8 महीने का टाइम लग सकता है। ये उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा सितंबर महीने में थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज था, बट एज ऑफ नाउ देखिए तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और 6 टाइम की वर्किंग कैपिटल वी आर लुकिंग उसके आसपास रहेगा इस फिलहाल। ओके, थैंक यू। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो सब कमर्शियलाइज होगा, उसके बाद हमारा रेवेन्यू मिक्स क्या रहेगा? हमें लगता है कि इस साल में मतलब ये कॉमर्शियल वाला जो वर्टिकल है उसमें हमारा ये वाला वर्टिकल है कॉमर्शियल का, दैट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 17%। हमने ये बनाया। फिर कोल्ड रूम वाला वर्टिकल है वो 40 to 45 की रेंज में रहेगा। और इंडस्ट्रियल वाला वर्टिकल है वो अराउंड 3% के आसपास रहेगा। ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन भी 7 to 9% की रेंज में रहेगा। और एमोनिया का वर्टिकल है वो शायद 18 से लेकर 22% की रेंज में रहेगा। और जो नए प्रोजेक्ट से हम बिजनेस करेंगे दैट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ
around 10%, 10-12%. Okay. Thank you. Thank you and all the best. Thank you. Thank you. A reminder to all the participants, you may press star and one to ask a question. Next question is from the line of Shane De Silva, individual investor. Please go ahead. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो हमारा 200 करोड़ का केपेक्स का प्लान था, तो इसमें से लास्ट पिछले कुछ कॉल्स में आपने बोला था कि 100 करोड़ होने के बाद एडिशनल 100 का आप जोग्राफिकल एक्सपेंशन इन नॉर्थ थ्रू अ वेयर हाउस या और एक कंटिन्यूस पीयूएफ की प्लांट बिठाने का या ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो उस पे कुछ अपडेट या क्या हो रहा है उस पे उसका इलैबोरेट कर सकते हैं? एक्चुअली ये दो प्लांट जब 100% ऑपरेट हो जाएंगे, इस साल में 3-4 महीने में रेवेन्यू शेयरिंग होगा, तो मार्च एंड या अप्रैल में हम उसका थोड़ा रिव्यू करेंगे प्रोजेक्ट में, और वो करंट मार्केट पोजीशन के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि जियोग्राफिकली लोकेशन चेंज करना है या कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो वो डिसीजन हम अप्रैल महीने में रिव्यू करेंगे, यानी मार्च एंड के बेस पे जो हमारा रेवेन्यू होगा। तो अभी आगे का कोई ये करंट 3-4 महीने में कोई कैपिटल का कोई इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग नहीं है, मगर बाय नेक्स्ट Q1 में उसका डेफिनेटली कुछ हम डिसीजन लेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you very much. As there are no further questions, I will now hand the conference over to Mr. Mandar Desai for closing comments. Q2 FY 2025 has been a strong quarter for Ice Mate Refrigeration. Our consistent growth across key financial metrics highlights our resilience and the effectiveness of our business strategies. We remain confident in our ability to navigate the challenges ahead and to capitalize on the opportunities in the rapidly evolving refrigeration industry. On behalf of the Ice Mate Board of Directors and the management team, I would like to extend our gratitude to our shareholders, employees and partners for their continued support. We are committed to delivering value and look forward to strong performance in the coming quarter. If you have any questions or require additional information, please feel free to reach out to us or our investor relations advisor. We are here to assist you with any inquiry. Thank you. Thank you very much. On behalf of Ice Mate Refrigeration Limited and Ariana Matasco, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.